Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava, and in today's class, I am going to discuss about geography, chapter number chapter number 3, and today the part 2 of this chapter, which I am going to discuss. Okay, part 1 I have already discussed. Okay, in your half yearly examination, 3 chapters will come. Okay. So let's begin. Today's topic which I am going to discuss is where is then water scarcity likely to occur. It means कि on the earth there have much water present. Water availability is so much, but we are facing so many problems regarding water scarcity. Okay, as you have read in the hydrological cycle, you know very well about hydrological cycle, about fresh water can be obtained directly from the precipitation. You know very well, fresh water we get from directly from precipitation. Okay, and surface runoff and groundwater. It means कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद पोखरों में, तालाबों में पानी इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, वही पानी रिस करके मतलब सोख करके ग्राउंड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो फ्रेश वाटर हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी. किसी एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो सकती है, फिर भी वहां पानी की कमी देखने को मिलती है. व्हाई? तो many of our cities are such example. Thus water scarcity may be an outcome of a large and growing population. It means कि if in a particular area, if huge population are survived there, then water scarcity is a common problem for that people who live in a very huge populated areas. Okay, areas. So a large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. A large population require water not only for drink but also to produce some types of food, and also that water are used for domestic purpose. Okay, it means कि जो populated जनसंख्या वो सिर्फ पानी पीने के लिए ही ज्यादा पानी यूज नहीं करती, बल्कि अपने घरेलू काम को मतलब डोमेस्टिक वर्क को पूरा करने के लिए वो पानी का यूज करती है, और साथ में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो खाने के लिए प्रोडक्ट भी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए वो पानी का यूज करते हैं. इट मींस नॉट ओनली फॉर वी only not use water as drinking water, but also we will use water as a domestic use and also for growing crops. Okay, so let's move on. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. It means कि water is uses more in dry areas to produce more crops for a huge population. It means कि if population will be increases, then production of food will be also increases. Then water uses in dry areas to growing crops will be also increases. You know what I mean? Okay. Irrigated agriculture is the largest consumer of water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought resistance crop and dry farming techniques. It means कि we will use irrigated agriculture, large consumer of water. Now it is needed to revolutionize. अब हमें ऐसी खेती करने की जरूरत है जिसमें पानी कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, ड्राई एरिया में भी हम खेती कर सके. इट मींस वी विल यूज सच टाइप ऑफ टेक्निक टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ फूड इन लेस वाटर. ओके, so you may have seen in many television advertisement that most farmers have their own wells. You have seen in many of the advertisements which you watch on TV that most of the farmers have their खुद के कुएं होते हैं, उनके खुद के ट्यूबवेल्स होते हैं, खुद के फॉर्म्स होते हैं. किस लिए? टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. ओके,
to increase production of crops. But have you ever wondered what this could result in? लेकिन आपने सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या होता होगा? तो मैं बता दूं आपको कि this it may lead to falling ground water level. अगर हम इरिगेशन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ग्राउंड वाटर क्या होगी, धीरे धीरे नीचे गिरती जाएगी। ओके, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या होगी, नीचे गिरती जाएगी। और जो हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलने वाला था, क्योंकि फ्रेश वाटर का यूज तो हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें इसका यूज ध्यान से करना चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इंडिया में ऐसे कई सारे उदाहरण, एग्जांपल्स हमको देखने को मिल सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियों का लगना, इंडस्ट्री का लगना। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, शहरों का नया नया बनना। क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से आज के समय में हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर एज अ कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ मेनी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ओके, कई सारी एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ऐसी कंपनियां जिनके दुनिया भर में ब्रांचेस होते हैं। ओके, द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती गई वैसे वैसे फ्रेश वाटर पे प्रेशर बढ़ता गया, वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे इरिगेशन बढ़ता गया। मतलब हर एक चीज क्या है, पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है कि कंपनी आएंगे कि नहीं। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की जरूरत बढ़ेगी, लोगों की जरूरत बढ़ेगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा एमएनसी करना होगा, क्योंकि उन लोगों की रोज की डोमेस्टिक मांग को पूरा करने का, जरूरत को पूरा करने के लिए सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो इसका बेस क्या है, पॉपुलेशन। इफ पॉपुलेशन विल बी इंक्रीजेस देन एवरीथिंग विल बी इंक्रीजेस, सच एज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, सच एज एमएनसी, सच एज वाटर स्कार्सिटी। हर एक चीज इंक्रीज होगा, डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन हमारे देश की कितनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, so far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity. Okay, so far we have focused on the quantitative aspects of water scarcity, मतलब पानी की कमी न हो इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. ऐसे भी एरिया हैं इस इंडिया में जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है एक समय पे बहुत ज्यादा होती है और एक समय पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ओके, ऐसे भी एरियाज हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, बारिश के दिनों में पानी ज्यादा हो जाता है, तमाम है। इंडियाज रिवर स्पेशली द स्मॉलर वंस हैव ऑल टर्न इनटू टॉक्सिक स्टन्स। भारत की जो नदियां हैं, छोटी हो चाहे बड़ी, सभी फैक्ट्रियों से निकलने वाले टॉक्सिक एसिड्स को अपने साथ बहा करके ले जाती हैं, ठीक है, और गंगा नदी में, यमुना नदी, बड़ी बड़ी नदियों में ले जाके गिरा देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पानी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पानी पॉल्यूट हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चर, लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने, पॉपुलेशन बढ़ती है तो ज्यादा खेती होगी, मॉडर्नाइजेशन ज्यादा होगा, अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एनॉर्मस वे में हम पानी का यूज करेंगे और आने वाले टाइम में पानी की कमी हो सकती है। ओके, you may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources. हमें अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। यू नो वेरी वेल। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और अगला टॉपिक आपका है कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।